अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है Title है जी चलन बील इन मॉनसून, अ स्टोरी ऑफ बोट्स पीपल एंड स्ट्रगल। और चैनल है एज डॉक्यूमेंट्री, जिनकी वीडियो पे आज हम रिएक्ट करेंगे। और आज हम एक और बील देखने जा रहे हैं बांग्लादेश की, और देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं। जानते हैं इनकी कहानी, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलने से पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। सीखते हैं ना, उनको पानी इतना देखो, गांव के गांव डूबे हैं हमें। বাংলাদেশের হৃদয়ে এমন এক জলভূমি রয়েছে যেখানে বর্ষা মানেই নতুন জীবন, নতুন সংগ্রাম এবং নতুন গল্প। সেই জলভূমির নাম চলন বিল। বর্ষার আকাশ যখন মেঘে ঢেকে যায়, টিপ টিপ বৃষ্টির ফোঁটা যখন মাটিতে ভিজিয়ে দেয়, তখন ধীরে ধীরে জেগে ওঠে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল। চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। মনে হয় যেন প্রকৃতি নিজে এখানে এক বিশাল জলরাজ্য গড়ে তুলেছে। আজ আমরা ঘুরে দেখব সেই চলন বিলকে, জানব এর ইতিহাস, মানুষের জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতির দান এবং বর্ষাকালে বদলে যাওয়া এক বিশাল জনপদের গল্প। सब कुछ एक हो जाता है ना ऐसे मौसम में। চলন বিল বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ জলাভূমি। নাটোর, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই বিলাঞ্চল। প্রায় ১৬০০ গ্রামের মানুষের জীবন ও জীবিকা এই বিলকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। বর্ষাকালে অসংখ্য ছোট ছোট বিল, নদী ও খাল একাকার হয়ে বিশাল জলরাশিতে পরিণত হয়। দিগন্ত জোড়া এই জলভূমি শুধু একটি বিল নয়, এটি একটি জীবন্ত পরিবেশ ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির শত শত বছর ধরে একসাথে বেঁচে আছে। হাজার বছরের ভূপ্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে চলন বিল। এক সময় এর আয়তন ছিল আরো অনেক বড়।
নদীর পলি জমতে জমতে ধীরে ধীরে এর বিস্তৃতি কমে এসেছে। গবেষকদের মতে আত্রাই সহ অসংখ্য নদীর প্রবাহ এবং পলিবাহিত স্রোতের প্রভাবে এই বিশাল জলাভূমির জন্ম হয়েছে। আজও বর্ষা এলেই প্রকৃতি যেন সেই পুরনো চলনবিলের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। तो स्वामी का यही सोच है। हाँ जी। চলনবিলের জীবন মানেই সংগ্রাম। এখানে মানুষকে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বাঁচতে হয়। বর্ষার পানি যেমন আশীর্বাদ নিয়ে আসে, তেমনই নিয়ে আসে দুর্ভোগ। তবু এই মানুষগুলো হাল ছাড়ে না, सूखी घास। প্রতিদিন নতুন করে জীবনকে সাজায়, इसके लिए कुछ आ নতুন रहे हैं। করে স্বপ্ন দেখে। ये रखी हुई है, बोट पे थी। नहीं, बड़ी वाली थी, उससे ज्यादा सामान इसके ऊपर था। इस तरह की होगी, ऐसी थोड़ी बड़ी होगी। हाँ, कश्तियाँ ऐसे चलती हैं जैसे बस सर्विस चल रही होती है ना। टुक-टुक जाता हाँ रहता है। हाँ हाँ। और जहाँ तक देखो पानी नजर বর্ষায় চলনবিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হলো নৌকা। যেখানে রাস্তা নেই সেখানে নৌকায় পথ। বাজারে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, চিকিৎসা নেওয়া কিংবা আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া সব কিছুর সঙ্গী এই हर নৌকা। जगह पे जाना है इसी कश्ती के এখানে নৌকা শুধু একটি যানবাহন নয়, এটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। इम्पोर्टेंस। तो देखो पानी निकाल रहे हैं। सब कुछ तो देखो रोका हुआ है। और वो देखो शिप भी अपनी, वो सॉरी बोट अपनी, वो बकायदा रूट्स पे चला रहे हैं। जी। सी ट्रैफिक में तो मैनेज की होती है ना। हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस है ना। हाँ जी। বর্ষার পানিতে অনেক রাস্তা তলিয়ে যায়, কোথাও কোথাও বাজারের সামনেও পানি উঠে আসে। পরিচিত জনপদ হঠাৎ করে জলমগ্ন দ্বীপে পরিণত হয়। যে পথে মানুষ প্রতিদিন হাঁটতো আজ সেখানে নৌকা ভাসছে। अच्छा यहाँ भी देखो अंदर से सिटी की सड़कें सारी ठीक है। हाँ जी। आउटस्कर्ट्स सारे नीचे हैं। ये हैंडपंप लगा है उसमें। उसका टैप ऑलरेडी पानी के नीचे। अब जिनको तो पता है रास्ते का वो तो चल रहे हैं, जिनको नहीं पता वो চলনবিলের অনেক গ্রামের রাস্তা এখনো কাঁচা। একটু বৃষ্টি হলেই সেই পথ পরিণত হয় কাদার সাগরে। পায়ে হেঁটে চলা কঠিন, মোটরসাইকেল পিছলে পড়ে, রোগী নিয়ে যাওয়া অনেক কঠিন। তবুও প্রতিদিন মানুষ এই পথ পাড়িয়ে জীবিকার সন্ধানে বের হয়। Jeffrey would have it, sir. कितना बड़ा है। इस रास्ते पे क्या चलेगा? कोई कह रहे हैं कि जूती है, बाइक है, गाड़ी है, रिक्शा है, किसने चलाना है यहाँ पे? पैदल चलते हैं और नंगे पाँव। আমরা চলনবিলবাসী আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি। যেমন দেখা যাচ্ছে বর্ষাকালে আমাদের রাস্তাঘাট বা ব্রিজ কালভার্ট এগুলান দেখা যাচ্ছে তলিয়ে যায়। তো এখন এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার শর্তে আমরা দেখা যাচ্ছে যে সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি যে আমরা যাতে ডিজিটাল বাংলাদেশে আসে আমরা সেবা পাই।
বর্ষার সময় শিক্ষার্থীদের স্কুলে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দূরবর্তী গ্রামের অনেক শিশু নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। কখনো নৌকার অভাব, কখনো খারাপ আবহাওয়া, আবার কখনো পানির স্রোত তাদের শিক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ये बस वो चंद बच्चे जो पहुंच पाए। বর্ষা মৌসুমে बेचारों की भी तंगी है, শুরু स्कूल হওয়ার तक পর नहीं जा থেকে মাত্র গ্রাম ইন্দ্রাসনে চারিদিকে পানিতে ডুবে গেছে এবং রাস্তায় এবং যাতায়াতে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। এই হেন অবস্থায় আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারছে না। তারা প্রতিনিয়তই পানি হচ্ছে ভেঙে আসতে হয়, নৌকা সময় মতো পাওয়া যায় না। আমরা যারা শিক্ষক আছি তাদেরও ওই পয়েন্ট থেকে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। শিক্ষার্থী ব্যতীত যারা গ্রামের লোকজন আছে তাদেরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। इतना स्टडीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्या पता। मेरा ख्याल है फुटबॉल ग्राउंड था। চলন বিলের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বহন করে মাটির বাড়িগুলো। গরমে শীতল, শীতে আরামদায়ক এসব ঘর এখনো অনেক পরিবারের আশ্রয়। কিন্তু টানা বর্ষণে ভিজে যায় দেওয়াল, ধসে পড়ে ঘরের একাংশ। অনেক পরিবারকে নতুন করে ঘর মেরামত করতে হয়। বর্ষা তাই শুধু আনন্দ নয়, উদ্যোগও বয়ে আনে। বৃষ্টির কারণে অন্যের ঘর এসে আমার ঘরের উপর পড়ে, আমার ঘর একবারে মানে টিন একবারে সব ধুসে পড়ে একবারে মনে হয় ভাঙ্গে চুরে ছাতু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মাটির বাড়িগুলো বৃষ্টির সময় ভাঙ্গে পড়ে যায়। ये देखो, इलाज कर जाते हैं ना। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। বর্ষাকালে বিল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কচুরিপানা। দেখতে সুন্দর হলেও অনেক সময় নৌ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। তবে গ্রামের মানুষ এটিকে অপচয় হতে দেয় না। গরুর খাদ্য হিসেবে কচুরিপানা ব্যবহার করে তারা খরচ কমায় এবং গবাদি পশুপালন সহজ করে তোলে। ना ये पानी के ऊपर ही जानवरों के लिए उनका भी तो ख्याल रखना है साथ साथ। এখন চলন বিল ডুবে গেছে, কচুরি পানা কাটে কাটে গরু খিলেচ্ছি, নামে নৌকা নাই। এখন এই 8টা করে এইভাবে লালন পালন করছি। চলন বিলের বর্ষা মানে হাঁসের রাজত্ব। तो बंद किया। প্রাকৃতিকভাবে খাবার পাওয়ায় হাঁস পালন এখানে অত্যন্ত লাভজনক। হাজার হাজার হাঁস ভেসে বেড়ায় বিলের পানিতে। এটি বহু পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস। बहुत है। এখনো পুরোপুরি মাছ ধরার মৌসুম শুরু হয়নি। পানি নতুন এসেছে, ये मछली के তবুও लिए किया। স্থানীয় জেলেরা ছোট জাল, খেয়া জাল এবং দেশীয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাছ ধরার চেষ্টা করেছেন। ओह, আর কয়েক সপ্তাহ পরে শুরু হবে মাছের প্রকৃত মৌসুম।
বর্ষা মানে পাটের মৌসুম। বিলের পানিতে জাগ দেওয়া পাট থেকে আঁশ ছড়ানোর কাজ চলে দিনের পর দিন। এই সোনালী আঁশ শুধু কৃষকের অর্থনীতিই নয়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অংশ। ये देखिए, ये नई कश्तियाँ बन रही हैं। যেখানে নৌকা ছাড়া জীবন চলে না, সেখানে নৌকা তৈরিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। দক্ষ কারিগরের হাতে কাঠের টুকরো ধীরে ধীরে রূপ নেয় একটি ये बैम्बू के পূর্ণাঙ্গ बने हुए নৌকায়, যেই নৌকা পরে হয়ে ওঠে একটি পরিবারের ভরসা। বন্যা ও বর্ষার মাঝে থেমে থাকে না কৃষক। বাড়ির উঠানে লাউ, কুমড়া, কচু, মরিচ, শাকসহ নানা ফসল উৎপাদন করেন তারা। कद्दू, हाँ। ছোট এই উদ্যোগ পরিবারকে দেয় পুষ্টি ও বাড়তি আয়। लौकी लंबी वाली होती है, कद्दू गोल वाला। চলন বিল শুধু একটি বিল নয়, এটি উত্তরাঞ্চলের পরিবেশ, কৃষি, মৎস্য সম্পদ, জীববৈচিত্র্য এবং ভূগর্ভস্থ পানির ভারসাম্যের অন্যতম ভিত্তি। এই জলাভূমি লাখো মানুষের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। लाखों के जीवन का सहारा भी है। वाह, সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যায় চলনবিল পশ্চিম আকাশে। ফিরে আসে নৌকা, ফিরে আসে জেলে, ফিরে আসে কৃষক। কিন্তু চলনবিলের গল্প শেষ হয় না। প্রতিটি ঢেউ, প্রতিটি নৌকা, প্রতিটি মানুষের মুখে লুকিয়ে আছে নতুন গল্প। এই জলরাজ্য শুধু প্রকৃতির বিষয় নয়, এটি মানুষের অদম্য সংগ্রাম, অভিযোজন এবং বেঁচে থাকার এক অনন্য ইতিহাস। এটাই চলন বিল, এটাই বাংলার জলজ সভ্যতার এক জীবন্ত অধ্যায়। स्टॉल आज की वीडियो में हमने चलन बील को देखा और हमें ये पता चला कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी बील है ये। और आप ये देखो कि वो कितना बड़ा हिस्सा कवर कर रही है। मतलब आप देखो कि 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं लगते हैं हैं और इसको। 1600 गांव उसके अंदर आते हैं, 1600 गाँव। तो आप देख ले कितना पानी है आप वहाँ देखें पे। कि पबना, सिराजगंज, नटोर, ये सारे उसको लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो 1600 गांव हैं, आप उसको देखो कि लाखों लोग रहते होंगे उसके अंदर, और कितना मुश्किल है उनके लिए यहाँ पे जीना। और जिस तरह से उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि भाई देखो, अगर उन्होंने सर्वाइव करना है, स्ट्रगल करना है, अच्छा। कि जिंदगी तो गुजारनी है ना उन्होंने, तो ये जो कश्ती है, बोट कितनी ये इम्पोर्टेंट lifeline है उनकी। बिल्कुल इसी और मुझे तरह वहाँ के लोगों की ना सबसे अच्छी बात भी ये लगती है कि जनरेशन से वो यहाँ पे रह रहे हैं, हाँ उन्होंने एक ही चीज को समझते हुए अडेप्ट कर लिया हाँ। वहाँ से। Assist करना सीख वो लिया है, उनके बिल्कुल। पास कश्तियाँ हैं, उनके पास वेजिटेशन के नए तरीके तरीके हैं, वो हैं। एडजस्ट कर गए हुए आप हैं। देखिए, हालांकि जब पानी चढ़ता है तो जितनी भी रोड्स हैं वो सारी की सारी पानी के नीचे चली हाँ, जाती क्योंकि हैं। रोड नेटवर्क है हालांकि यहाँ। वो बता रहे हैं कि रोड नेटवर्क गवर्नमेंट की तरफ से बना है। हुआ बना है, हुआ लेकिन है। उसके बावजूद आप ये देखो कि उन्होंने को एग्जिस्ट करना सीख लिया है कि किस तरह से अब इस पानी के साथ वो कैसे रह रहे हैं। वो हाँ हमें जी। चीज समझ में आ रही है कि भाई मछली भी वो पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं, उससे भी उनका रोजगार चल रहा है। और उसके बाद वेजिटेशन जी, वो वाली कर रहे हैं जो इस पानी के साथ जो है ना वो सही रहती है। आगे वो पटसन वगैरह भी तो नजर आते जूट हैं। भी grow हो बिल्कुल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से है। और आप ये चीज देखो कि आपको वहाँ पे ये फिश के अलावा
बेशुमार डक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। और फिर उसी में एक उन्होंने पौधा बताया जो हमने पिछली वीडियो में भी पूछा था कि भाई वो ग्रो कर रहा है, ग्रो प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, और उसको वो क्या करते हैं कि खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं अपने जानवरों जानवरों के के लिए। लिए अब ये भी बेचारा। चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खाली खुद नहीं जिंदा रहना, हाँ जी। जानवरों का भी और जब ख्याल आप देखें ना, अगर मुश्किलात है तो उसके साथ ये वाली चीजें भी आसानियां मिल भी रही हैं। हैं, मतलब आप बिल्कुल। देखें मुश्किलात में जो चीज नजर आ रही है, रोड्स हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो नहीं हो सकती हैं, सकती। बच्चों के स्कूल मौजूद है लेकिन स्कूल तक वो अब पहुंच देखिए नहीं कितनी सकते। मुश्किल है, मतलब सारे का सारा रास्ता कीचड़ बना हुआ है, मड है वहाँ पे, हाँ। और उसको लोग क्रॉस करके किस तरह से, किस मुश्किल से जा मुश्किल रहे से हैं। जा रहे, नहीं पहुंच पाते नहीं ना पहुंच बच्चे, वो पाते। वही तो बता रहे हैं कि बच्चे नहीं पहुंच पाते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आ रही है कि भाई लोगों के घर टूट जाते हैं इतनी बारिश के अंदर, इतनी मेहनत से वो घर बनाते हैं। अब जिस तरह वो एक भाई साहब का दिखा रहे थे कि भाई उन्होंने बताया कि भाई 3 बार 3 मेरा बार घर उनका तबाह घर हो तबाह चुका है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन बहरहाल जी जिंदगी का सर्कल इसी तरह से चलता है। जो सब्जियां वहाँ पे उगा रहे हैं उन्हीं को बेच रहे हैं, उन्हीं को खा रहे हैं, लेकिन बहरहाल कश्ती बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये चीज़ तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली। और आप ये चीज़ देखो कि ये सर्कल ऑफ लाइफ है, ये इसी तरह से चलता रहेगा, ज़मानों से चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल देखने में दूर से कोई देखे तो वो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कोई इन लोगों से पूछे कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है इन लोगों के लिए। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। बाकी आप कुछ कहना चाहते हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब बहुत ख्याल रखिएगा।